Hello. Omkar ji, we जी can सर। start. We can start the presentation. First, I will introduce yourself, and then we'll work out. जी Okay. Yeah. जी ठीक है। Good morning, one and all the participants, dignitaries, as well as our eminent speaker, Mr. Omkar Singh. I welcome you on the behalf of CCS Niyam Jaipur, Principal Scientific Advisor Office, Government of India, and keen benchmark of Kisan Mitra. So first of all, I will introduce our eminent speaker, Mr. Omkar Singh, having a very diverse experience in the field of agriculture and agriculture allied activities. He has keen experience of last 38 years in field of agriculture, dealing with input cost and effective technologies in agribusiness and agribusiness ecosystem. He is the director of Dharti Mitra Eco Services Private Limited, coming up with solution to farming problems through nature, ancient wisdom, and modern agriculture techniques. He has come up with innovative techniques in input adjustment, input varieties, then dealing with biogas, coming up with ingredients which can decrease the cost of input and come up with production economic activities. So with this brief information, I like to invite our eminent speaker, Mr. Omkar Singh, for his eminent presentation on input cost effective technologies in agribusiness, solution to farming problems through nature, ancient wisdom, and modern agri techniques. Sir, I hand over you for the upcoming presentation. Omkar ji, you can start the presentation, sir. Yeah. Thank you, Mahesh ji. First of all, I would like to thank CCS Niyam, and all the staff of CCS Niyam, and who all are associated with this great initiative, that great webinar presentation today. I would like to introduce first myself. Already, introduction is already been given, but still I want to add few of the point. Sure. I want to correct one or two sentences. Mr. Kadamji told that I have a 38 years of experience, but this is not correct. My age is 38, so I do have an experience of around 4 years in this agriculture field. प्रेजेंटेशन जो है उसमें वो हिंदी और इंग्लिश आई थिंक दोनों में कंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज जो हमारे फार्मर, हाँ जी, हमारे किसान मित्र जो हैं वो हिंदी में बड़े कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं थोड़ा मिक्स करके चलूंगा। यस सर जी। तो मुझे किसानी के क्षेत्र में और उसके एलाइड एक्टिविटी उनके क्षेत्र में पिछले 4 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं भारतीय नौसेना की मरीन कमांडो फोर्स में था, और एज ए मरीन कमांडो में साल नेवी में अपनी दी, और मैं 2016 में था, और रिटायरमेंट के बाद में मैंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र को चुना, और उसका कारण यह था कि मेरे समस्याएं देखी, मेरे गांव में मैंने कुछ ऐसी समस्याएं देखी मेरे रिसर्च के दौरान, कि जिसमें मुझे लगा कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की और बहुत अलग तरीके से इसको अप्रोच करने की जरूरत है। तो इसलिए मेरे रिटायरमेंट के बाद में 2017 में मैंने धरती अमृत की शुरुआत करी। मैं बहुत से अलग अलग जगह घूमता हूँ, अलग अलग एग्रीकल्चर की जो भी इनोवेशन जो हो रहे हैं उनके लोगों से मिलता हूँ और उनके बारे में समझने की कोशिश करता हूँ। तो धरती अमृत में शुरुआत करी, एग्रीकल्चर जो है उनको एक नए तरीके से समझ के और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरीके से एड्रेस करने के लिए। तो 2017 में जब मैंने शुरुआत करी तो सबसे पहला जो मुझे समझ में आया कि आज के समय में जो किसान इस वक्त जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को जो करते जा रहे हैं, तो हमारा जो बहुत पुराना छुपा हुआ ज्ञान जो आ रहा था उसको कहीं न कहीं ब्रेक कर दिया गया, और किसान जो आज के समय में उस ज्ञान से थोड़ा हटे जा रहे हैं। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। 2017 में जब मैंने शुरुआत करी तो मैं अलग अलग गाँव में जाता था, अलग अलग किसानों के समूहों से मिलता था, उनको ये समझाने की कोशिश करता था कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप अपनी जमीन के कुछ हिस्सों में एटलीस्ट जो केमिकल आप यूज करते हैं उन केमिकल को बंद करें। और केमिकल जब आप बंद करेंगे, जब आप देशी गोबर की खाद, देशी गाय के गोबर की खाद और जो हमारे और भी मवेशी हैं उन सब की खाद को अगर अच्छी तरीके
तो हमारे जमीन में केंचुए अच्छे से आ जाएंगे और केंचुआ किसान का बहुत बड़ा है। तो मैं बहुत आश्चर्य था उस समय पे जब किसान कहते थे कि ये कैसे होता है, जबकि कहा ही जाता है कि किसानी में और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें केंचुआ किसान का सबसे अच्छा मित्र है। जिन जमीनों में, जिन खेतों में केंचुए खूब अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो इनपुट कॉस्ट है, जो किसानों को एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, वो हद तक कम हो जाती है, वो बहुत हद तक कवर हो जाती है। केंचुआ वो काम जो है वो फ्री में एक तरीके से किसानों के लिए करता रहता है। उसके लिए जरूर एक माइक्रो क्लाइमेट और जो केंचुए का जो भोजन है वो किसानों को उपलब्ध कराना होता है। लेकिन बहुत मुझे बड़ा आश्चर्य होता है आज भी कि जो लोग पिछले 30 साल से जो खेती कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल तरीकों के साथ में आज के समय में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स को और अलग अलग चीजें यूज करके खेती कर रहे हैं, उनको जब ये बताया गया कि केंचुआ किसान का बड़ा अच्छा मित्र है, और जब वो ये कहते हैं कि केंचुआ होता है क्या है हमें पता नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है केंचुआ, तो केंचुआ है, तो ये अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन है जो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं जो हमारा पौराणिक ज्ञान जो है इससे हम लोग हटते जा रहे हैं। तो मैंने उस वक्त पहला जो मेरा मकसद था वो उनको सबको ये समझाना था कि खेतों में केंचुआ एक जीव है जो कि किसान का होता है और जो काम करता है। ऐसे असंख्य जीव हैं जो कि हमारी मिट्टी में है, हमारी जमीनों में है, जिनको कि फर्टिलाइजर की मार से वो बहुत कम हो चुके हैं और कई कई जगह पे खत्म हो चुके हैं। पर ऐसा नहीं है, खत्म नहीं हुए हैं। उनको अगर ये कहा जाएगा कि वो जमीन में काफी गहरे तक हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर्स की जो मार है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा है और इस वजह से वो अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाते। तो हमारा जो मानना ये है कि हम लोग हमारा जो पौराणिक ज्ञान है, जो एंशियंट विजडम है, उसको आज के समय की मॉडर्न टेक्निक जो है, जो आज साइंस प्रगति कर रही है, हमारे अलग अलग इनोवेशंस जो है प्रगति कर रहे हैं, उन दोनों को खूब अच्छे से बैलेंस में मिक्स करके, और फिर जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो माइक्रो क्लाइमेट इन सारे के सारे सूक्ष्म जीवों को काम करने के लिए चाहिए, वो कभी भी खुली जमीन में नहीं हो सकता। उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है और क्या क्या चीजें खेत में होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो आप नेचुरल इनपुट डाल के और ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को खेत में बढ़ाएं, जिससे आपकी जमीन उन्नत होगी और आपको जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से मिलेगा। तो इन दोनों, मैं दो नहीं कहूंगा बल्कि मैं तीन चीजें कहूंगा कि इन तीनों चीजों को मिक्स करके फिर हमने एक मेथड इवॉल्व किया है, जो कि हम किसानों के बीच में ले जा रहे हैं, जगह जगह हम किसानों को बता भी रहे हैं। और जो तीसरी चीज जो मैंने कही है कि आप एक माइक्रो क्लाइमेट पेड़ों के साथ में और छोटे छोटे जंगलों के रूप में आप डेवलप करें, तो जब वो डेवलप जो किसान अपने खेत में करने लगेंगे, तो वो एक तरीके से एफडी का काम करता है। यहां मैं किसान मित्रों को सबको ये बताना चाहूंगा, अगर आप कंपेयर करते हैं किसानी को बाकी अलग प्रोफेशन, तो बाकी अलग प्रोफेशन में क्या होता है, जो लोग जॉब करते हैं सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, तो जिस वक्त वो लोग रिटायर हो रहे होते हैं या उनके पास में और बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिनको कहा जाता है कि किसान सभी के जीवन में दो तीन बड़े काम होते हैं, और उस बड़े काम पे उन लोगों को एक वक्त में एक पैसे की जरूरत होती है, एक धन की जरूरत होती है। किसान अगर जो तीसरा जो तरीका है कि अपने खेतों में वो इस तरीके से पेड़ लगाए कि वो एक एफडी के रूप में उनमें उनके पास में रहे, जो उसको 12 साल या 15 साल 20 साल के अलग अलग जगह पे अलग अलग अवधि हो सकती है इसकी, उस अवधि में वो उसको हार्वेस्ट करके जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरी कर सकता है। अब तक जो मैंने पिछले 4 साल में जो हम काम कर पा रहे हैं उसमें जयपुर में मैं रहता हूँ, जयपुर के आसपास हम करीबन 150 फार्मर्स तक पहुंच पाए हैं। बिकॉज हमारी अप्रोच जो है वो बहुत उस तरीके की है कि जब तक किसान खूब बेहतर तरीके से उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं हो पाता, तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको समझ के और हमारी चीज डेवलप कर पाना। हमने काफी अच्छे तरीके से किसानों को समझाया है, और अब तक हम लोग करीबन 1,20,000 से ज्यादा संख्या में पेड़ खेतों में और अलग अलग जगहों पे हम लोग लगा चुके हैं। हम लोग बहुत डेंस फॉरेस्ट का भी काम करते हैं, वो भी शहर के बीच में भी हम लोग लगाते हैं और खेतों में भी लगाते हैं। हमारे इस काम की सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम एक या दो स्पीशीज को टारगेट न करके, और हम लोग जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां के जोन की करीबन 50 से 60 अलग
अलग वेराइटीज को मिक्स करके हम लोग किसान में लगाते हैं, जिससे कि माइक्रो क्लाइमेट जो है, जो किसान के खेत में जो जरूरत है बेसिकली, कि एक तो जो पानी है वो पानी का संचय ढंग से हो, जो जल स्तर जमीनों में नीचे गिरता जा रहा है, तो बहुत से पेड़ों की ऐसी वेराइटीज हैं जो कि जमीन के जल स्तर को मेंटेन करती हैं। वेपरेशन का जो प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है, हम देश के और विश्व के जिस भाग में हम लोग रहते हैं, यहाँ गर्मी के समय में बहुत तेज गर्मी होती है, टेम्परेचर जो है 46, 47, 48 तक पहुंच जाता है। उस समय पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है, कैपिलरीज की वजह से भी पानी बहुत ज्यादा हवा में छूटता है। तो जब आप इस तरीके ये प्लांट करके जो पेड़ लगाए जाते हैं, तो ये इवेपोरेशन को भी काफी हद तक कम किया जाता है, जिससे आपकी जमीन का जो पानी है वो मॉइस्चर के रूप में बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकले। तो जैसा कि मैंने अब तक बताया, सबसे बड़ी जो समस्या है, एक तो है कि इनपुट कॉस्ट, जो किसानी में लोग केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से, या अ, अ, अगर हम ऑर्गेनिक खेती की बात भी करें, तो जो मार्केट बेस्ड जो फर्टिलाइजर हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं, अ, उनको जब यूज करते हैं तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। जो केमिकल फार्मिंग है, जो यूरिया बेस्ड फार्मिंग है, डीएपी बेस्ड फार्मिंग, उसमें हमेशा यह होता है कि आज इस साल आपने जिस क्रॉप के लिए यूज किया, अगले साल भले ही चाहे आपको उसमें 5 किलो की वृद्धि करनी पड़े, पर एकड़ की बात करूं या पर हेक्टेयर की बात करूं, 5 किलो की वृद्धि करनी पड़े, कहीं कहीं पे 15, 20, 50, 50 किलो की भी वृद्धि उनको हर साल करनी पड़ती है। तो वृद्धि करने, जो ये इनपुट क्वांटिटी में वृद्धि करने से इनपुट कॉस्ट जो है ना, वो भी हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। एक और बड़ी समस्या जो मैंने इस दौरान किसानों के साथ इंटरेक्शन करने के दौरान जो मैंने पाई और जो मैंने समझी, वो ये है कि सीड जो किसान इस वक्त खरीद रहे हैं, वो बाजार से सीड खरीदते हैं जो कि हाइब्रिड सीड होते हैं। अब आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स भी आ रहे हैं। ये सीड इस तरीके से डिजाइन किए हुए होते हैं कि बिना केमिकल के इनसे प्रोडक्शन नहीं लिया जा सकता, और इनकी ग्रोथ वगैरह भी सारी केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये एक बड़ा कारण है कि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती है। अब इनपुट कॉस्ट जब बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली किसान का जो फायदा है, जो उसका मुनाफा है, वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। और सबसे बड़ा कारण इसका ये सीड जो है, मार्केट बेस्ड जो सीड्स हैं उनको काम में लिया जा रहा है, प्लस केमिकल फर्टिलाइजर जो एक्सेस यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से एक नेचुरल इम्बैलेंस भी इकोसिस्टम में हमें मिल रहा है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगा। पंजाब में पिछले साल हमने एक बड़ा अच्छा ड्राइव किया था ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके। तो जब मैं वहाँ बॉर्डर के इलाके में था, तो मैंने जमीन से 3 फीट ऊपर पे एक बड़ी मोटी सी मैंने बादलों की लेयर्स में देखी, और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि जमीन से इतना नजदीक ये कैसे हो सकते हैं बादल। फिर मुझे बाद में घूमते घामते मुझे पता चला कि वहां पे केमिकल्स इतने ज्यादा डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर इतने ज्यादा डाले जाते हैं कि जब भी वो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो जो फ्यूम्स बनती है वो बहुत जमीन के पास में ले लेती है। तो अपने आप में ये बड़ी भयावह स्थिति है। अभी हम लोग जिस जिस जोन में, जिस जगह में रह रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे इतने ज्यादा केमिकल्स यूज नहीं किए जा रहे हैं, पर केमिकल्स की जो मात्रा और फर्टिलाइजर्स की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसकी वजह से जमीन के अंदर के और जमीन के ऊपर के जो जीव हैं, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये जो एक इकोसिस्टम का जो डिसबैलेंस और इम्बैलेंस जो हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। इन तीनों चीजों के लिए हमारे जो समाधान है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करने के लिए मैंने नेचुरल इनपुट जो है, जैसे कि जीवाणु घोल हम बना सकते हैं, और नेचुरली जितने भी सीड्स जो हमें किसान यूज कर रहे हैं, उनको सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए भी नेचुरल बीजामृत के नाम से चीजें बनती हैं, जिसको किसान यूज करें तो उससे बहुत ही फायदा होता है। उनके सीड में जनरेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, पौधा हमेशा मजबूत होता है। मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि वो सारी चीजें किस किस तरीके से प्रोसेस की जाती हैं, कैसे कैसे बनाई जाती हैं। तो पहला काम तो ये है कि हम नेचुरल इनपुट जो है वो प्रोसेस करते हैं। नेचुरल इनपुट प्रोसेस करना हम किसानों को सिखाते भी हैं, और जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है वहां हम उनको प्रोसेस करके हम लोग प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। उससे पहले की जो चीज है कि सीड सिलेक्शन, तो किसान बीज जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसान किस तरीके के बीज काम में ले रहा है।
ये तय करता है, ये आगे के जो उसके पूरी फसल की दशा और दिशा जो है ना, वो तय करता है कि उसने सीड किस तरीके के लिए है। मुझे याद आता है जब मैं बचपन में था, मेरे गांव में जब मैं मेरे खेत में खेती को जब देखता था, तो मैंने देखा था कि जो भी फसलें होती थी उनमें से अ, हर किसान अपने खुद के सीड को प्रिजर्व करता था। उस प्रिजर्व करने का भी बड़ा यूनिक तरीका होता था। जैसे अगर मैं बाजरे की बात करूं, तो बाजरे का जो दाने निकाले जाते हैं, खड़ा जिसको बोलते हैं, वो निकालने से पहले जो बाजरे के पूरे छिटे होते हैं, उनको किसान उन दानों को उसमें से निकालते नहीं थे, में से, और उसको प्रिजर्व करते थे, और वो पूरे साल प्रिजर्व करके, और उससे खराब भी वो नहीं होते थे, और अगले साल फिर उनको बीजों के रूप में इस्तेमाल किया जाता। तो ये जो ज्ञान जो है, जो किसानी का है, वो अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। तो देसी सीड जो है, अच्छा उनमें भी सीड के लिए जो आपकी पूरी फसल खड़ी है, उसमें से सीड का सिलेक्शन कैसे करना है, ये भी अपने आप में एक बहुत अलग अलग तरीके का ज्ञान है। मैं इस ज्ञान के लिए हमारे पास में एक बहुत ही स्पेशल और एक्सपर्ट आदमी है, जो आगे की स्लाइड में उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सॉरी, तो ये वाला जो ज्ञान है, इसको हम किसानों के बीच में हम फैला रहे हैं। और अच्छा, मैं उनका नाम बता ही देता हूँ। पद्मश्री श्री सुंदरराम वर्मा की पिछले साल भारत सरकार ने पद्मश्री देने की घोषणा करी है उनके इस काम के लिए, जो इनका सीड डेवलपमेंट का काम है। राजस्थान की और राजस्थान के अलावा दिल्ली, गुजरात की करीबन 70 से ज्यादा तरीके की वेराइटीज जो है वो उन्होंने डेवलप करी हैं, जिनको कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो ये वेराइटीज जो है अब हम धीरे धीरे किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि वो केमिकल फर्टिलाइजर की बजाय अगर नेचुरल फर्टिलाइजर जो है, लोकली प्रोसेस फर्टिलाइजर, उस पर भी जब वो आएंगे तो वो अपनी जो क्रॉप है उसको अच्छे से कर पाए और वो काफी प्रॉफिटेबल ले पाए। उसी के साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट के जो मॉडल हैं, खेती आप कर रहे हैं, खेती में क्या होता है, जनरली 5 से 7 फुट 6 फुट जो भी आपकी क्रॉप की हाइट होती है, उतना एरिया आप लोग यूज करते हैं, किसान यूज करते हैं। लेकिन उसके आगे का जितना एरिया है वो सारा का सारा खाली पड़ा है। दूसरी चीज क्या होता है, हेलो, दूसरी चीज जो मैंने माइक्रो क्लाइमेट की बात करी है, वो भी जब वो खेत खाली पड़े होते हैं, तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी खेत में चाहिए होती है वो उस वक्त नहीं होती है। तो अगर आप बहुत प्लान वे में अगर उसके अंदर पेड़ लगाए जाएं, और वो पेड़ों के लिए भी मैं आपको बताऊं कि वो पेड़ सिर्फ एक किसी स्पेशल वैरायटी के नहीं होने चाहिए, जो सबकी अपनी अपनी समझ के हिसाब से उनको लगता है कि ये पेड़ मेरे बड़े काम का है, ये पेड़ मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, तो एक आध वैरायटी पे ही जाना पसंद करते हैं। लेकिन उसकी जगह पे कुछ ऐसी वैरायटीज होती हैं जो शायद उनके डायरेक्ट काम नहीं हो, पर वो जमीन में कार्बन को बहुत अच्छी तरीके से स्टोर करने वाले वैरायटी हो, वो पानी को संचित करके रखने वाली वैरायटी हो, जो पेस्ट आते हैं उनको कंट्रोल करने वाले वैरायटी हो। तो खेतों में इस तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल भी लगाए जाए खेती के साथ साथ, जो कि किसानों की एफडी के रूप में काम करेगा और उनको प्रॉफिट देंगे। अब सबसे पहला जो हमारा पॉइंट जो है, जो मैंने आपको बात करी थी कि हम नेचुरल इनपुट्स की अगर बात करें, नेचुरल इनपुट्स जो है, नेचुरल इनपुट्स के लिए सबसे बढ़िया जो हमारे पास में साधन है वो गाय है। और जो भी किसान के घर में जो भी उनके पास में मवेशी होते हैं, लोग भैंस भी रखते हैं, बकरी भी रखते हैं, ऊंट भी रखते हैं। तो जितने हमारे मवेशी हैं जो हमारे खेती में सहायता भी करते हैं, हमारी दूध की और डेयरी की प्रोडक्ट की जो जरूरत है उनको भी वो पूरा करते हैं। तो उन सबको प्रोसेस करके और बहुत अलग अलग तरीके की बहुत बहुत वेराइटीज की खाद जो है वो बनाई जा सकती हैं। एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर है इस पूरे के पूरी चीज में कि क्योंकि मैं इसको ज्यादा हमेशा फोकस करता हूँ और ज्यादा फोकस करवाने की कोशिश भी करता हूँ, और वो है हमारी देशी गाय। देशी गाय जो है उसको पिछले काफी लंबे समय से बड़ा परेशानी के रूप में लिया जाता है। ये माना जाता है कि अब इसकी प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो रही है, और ये अब हम किसानी के बहुत ज्यादा काम में नहीं रही है, बैल बहुत ज्यादा काम में नहीं रहे। पर अगर वो दूध देती है तो उसके बाद में अगर उसके गोबर गोमूत्र को आप इस्तेमाल करें एग्रीकल्चर के रूप में, कहा यह जाता है कि गौ में वसते लक्ष्मी, जो गोबर है उसके अंदर लक्ष्मी जी का वास है। और गौमूत्र जो बहुत अच्छी तरीके से हमारे निरोग के लिए भी फायदेमंद है और फसलों के निरोग के लिए भी फायदेमंद है। तो इन दोनों चीजों को मिला के और हमारे सारे है ना,
उनको बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात मैं करूंगा जीवाणु घोल की। जीवाणु घोल जिसे इसको बनाने के अगर आप सर्च करेंगे तो 30 अलग अलग तरीके हैं जिनको कि आप सब तरीके जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से बना सकते हैं। जीवाणु घोल बनाने के लिए 20 लीटर जो मैं जिसको ज्यादा यूज करता हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक दो तरीके और मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 20 लीटर गौमूत्र, उसके साथ में 20 किलो गोबर, फिर उसके बाद 2 किलो किसी भी तरह का आटा, 2 किलो गुड़ और 1 किलो बढ़िया पीपल के जड़ों की मिट्टी ले सकते हैं या मेड़ की मिट्टी ले सकते हैं, या अगर आपके आसपास कोई जंगल है तो जंगल की मिट्टी ले सकते हैं। ये मिट्टी का काम बेसिकली इसलिए ली जाती है कि अगर आप खेत की नॉर्मल मिट्टी लेंगे तो खेत की मिट्टी में जो केमिकल डले हम लोग अपने डले हैं, उसकी वजह से माइक्रोब्स जो है, जो सूक्ष्म जीवाणु है, उनकी मात्रा बहुत कम हो गई है। जो बड़े पेड़ है, ऐसा ही माना जाता है कि बड़े पेड़ के आसपास जो है वो केमिकल्स की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं डाली जाती, या होते नहीं है, या वो जहाँ है वहां इतने केमिकल यूज नहीं होते हैं, तो उनके जड़ों के पास में जीवाणु सबसे ज्यादा होते हैं। तो वहां की मिट्टी अगर आप इसमें यूज करेंगे तो जीवाणु इस पूरे के पूरे घोल में 4 से 5 दिन अलग मौसम के हिसाब से आपको 2 से 7 दिन अगर उनको रखेंगे तो वो जीवाणु अपनी संख्या खूब बढ़ा लेंगे। फिर जब आप इस जीवाणु घोल को जब आप जमीन में, अपने खेतों में, अपनी फसलों में जब छिड़केंगे, अपने फसलों में जब डालेंगे, तो वो जीवाणु अपनी संख्या असंख्य रूप में बढ़ा लेंगे। वो जीवाणु हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और फसलों को जितने न्यूट्रिएंट्स, जितने 18 तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग फसलों को अलग अलग मात्रा में जरूरत होती है, वो सारा का सारा इनको उपलब्ध करवाते हैं। तो ये जो 5 चीजें, इन 5 चीजों को आप खूब अच्छी तरीके से इनको मिलाइए और किसी ड्रम में आप ले सकते हैं इनको, चाहे प्लास्टिक के ड्रम में लें। जनरली प्लास्टिक के ड्रम ज्यादा रहता है क्योंकि लोहे में, और अगर आप सीमेंट का ड्रम लेंगे उसमें थोड़ा सा वो क्षरण ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आप प्लास्टिक के ड्रम में आप इनको लीजिए। इनको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ऐसा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारे जो जीवाणु है उनकी जो गति है वो इफेक्टेड नहीं होती है, उसकी वजह से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। इस मिश्रण को छांव में रखना है, तेज धूप और बारिश से बचाना है और ढक के रखना है। ड्रम को एयर टाइट नहीं करना है, नहीं तो वो ड्रम फट सकता है। बहुत अच्छी तरीके से उसमें गैस भी फॉर्म होती है, तो इस वजह से इसको एयर टाइट नहीं रखना है। ये हर मौसम के हिसाब से, अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो ये 2 से 3 दिन में तैयार हो जाता है। अगर आप सर्दियों के समय में बना रहे हैं तो ये 5 से 7 दिन इसको लगते हैं। 5 से 7 दिन में ये 2 से 7 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद इस मिश्रण को यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। इसको 200 से 400 लीटर पानी में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास में अगर सूखा गोबर पड़ा है तो उस गोबर में आप मिक्स करके उसको छांव में सुखा के और उसको भी आप छिड़क देंगे तो आपके जीवाणु जो है वो सारे जमीन में आके पहुंच जाएंगे। ये एक तरीका है जीवाणु बनाने का। इसके अलावा कुछ और हैं जो आपको इंटरनेट में मिलेंगे कि मटकी में आप करीबन 5 लीटर गौमूत्र, 5 लीटर गोबर और 500 ग्राम जो है ना ये आटा, गुड़ और ये सब मिला के उसको आप जमीन में गाड़ दें। उसके बाद में ढक के रखें उसको। फिर 3 से 5 दिन के बाद में उसको आप 200 लीटर पानी में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। एक तरीका और है कि जिसमें 200 लीटर पानी में आप 5 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर और ये आपके 1-1 किलो गुड़, बेसन और मिट्टी जो है ये आप डाल के और उसको 3 से 5 दिन उसको एक जगह रखें छांव में, और फिर उसको आप जो है ना डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसको फिर आप पानी में मिला के 400 लीटर पानी में मिला के आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजें हैं, अलग अलग इसके विधियां हैं, जिनको जो जो आपको अच्छी लगती है वो विधि आप यूज करें। लेकिन ये जितनी विधियां हैं वो आपके केमिकल जो फर्टिलाइजर है उनको रिप्लेस करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं। जयपुर के पास हम जिन जिन किसानों के साथ में सारी की सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और जो उनकी प्रोडक्शन है इसका एक तरीका है। इसको तरीका ये है कि इसका एक शेड्यूल बनता है हर फसल के हिसाब से। सब्जियों के हिसाब से अलग शेड्यूल है, जब आप कोई क्रॉप्स ले रहे हैं, दलहन ले रहे हैं, उनके हिसाब से इसका अलग शेड्यूल है। तो वो शेड्यूल जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि प्रोडक्शन में बिल्कुल कमी नहीं आती है। जो प्रोडक्शन किसान नॉर्मली ले रहा है वो बिल्कुल
केमिकल हटा के भी उतना का उतना प्रोडक्शन वो ले। अब जब आपकी खाद की जो आपकी आवश्यकता है, वो जब आपकी खाद की आवश्यकता पूरी हो गई, तो उसके बाद में ये आपके कीड़े बहुत ज्यादा आते हैं। और कीड़े जब आते हैं, कीट जो आते हैं, तो वो आपकी फसल को नुकसान करते हैं। आप सब्जियां कर रहे हैं, आपने कोई बगीचा लगा रहे हैं उसमें, तो कीट जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। आजकल जिस तरीके की फर्टिलाइजर की जो बाहर चल रही है खेतों में और खेती में चल रही है, जिस तरीके के सीड्स यूज किए जा रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया भर के पेस्ट जो है वो भी आते हैं और वो भी हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। तो इनसे फसलों को बचाने के लिए भी कई अलग अलग विधि के कीटनाशक, और कीटनाशक के बजाय मैं इनको कहूंगा कीट खदेड़क, जो आपकी फसलों को नुकसान नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो है उसमें गौमूत्र जो है देशी गाय का होना चाहिए। वो देशी गाय का जो गौमूत्र है उनको आपको यूज करना है। तो पहला तरीका है कीट खदेड़क बनाने का। उसमें आपको 2 से 3 लीटर गौमूत्र में नीम की पत्तियां जो उसके अंदर खूब अच्छे से जितनी उसके अंदर आप उनको डाल के आप 15 दिनों तक सड़ा के रखें। और सड़ने के बाद में उनको जो 1 लीटर आपकी दवा है, ये इसको केवल नीम की पत्तियों के साथ में यूज किया जाता है। तो उस 1 लीटर दवा को आप 50 लीटर पानी में मिला के और फसलों पे छिड़काव करेंगे, तो हमारे पत्ती खाने वाले जो कीड़े हैं या फलों में छेद करने वाले जो कीट है उनके जो उनके साथ में ना आपको काफी रिलीफ मिल जाएगी। वो आपकी फसलों को नुकसान नहीं करेंगे। उसके अलावा गौमूत्र के साथ में जो आपकी नीम की पत्तियां, तंबाकू भी आप मिक्स कर सकते हैं। 10 लीटर गौमूत्र में 1 किलो तंबाकू और 5 किलो 2 किलो नीम की पत्तियां अगर आप डाल के और उनको उसके साथ में एक नीला तोता भी बहुत अच्छी तरीके से कीटनाशक के रूप में काम करता है। नीला तोता डाल के उसको 20 दिनों तक डब्बे में बंद रखें। उसके बाद में ये जो 1 लीटर आपकी दवा है, तो थोड़ी पानी मिला के छिड़काव करें, तो उससे जो सुंडी है उसका भी बचाव किया जा सकता है। अब गौमूत्र के साथ में नीम की पत्ती मैंने आपको बताई, तंबाकू मैंने आपको बताया। उसके बाद में लहसुन जो है, लहसुन जो की जो स्मेल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कीटों को बचाने में काम करती है। तो ये जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उसके लिए केवल गौमूत्र और लहसुन का जो पेस्ट बना के और उसको आप जो आपका मिट्टी का तेल है तो उसके साथ में मिला के जब आप छिड़काव करेंगे, अब जब इसको छिड़काव करते हैं तो छिड़काव के समय में इसमें साबुन या गुड़ के अच्छी तरीके से मिक्स करके और फिर उसका फसल के ऊपर छिड़काव करना है। तो जो आपके 10 लीटर गौमूत्र के साथ में लहसुन और मिट्टी के तेल के साथ जो आपकी दवा तैयार हुई है, इसको 80 लीटर पानी में मिक्स करके और फिर आपको छिड़कना है। देखिए, ये जो आपको 50, 80 और 100 लीटर का जो रेशियो आपको जो दिया जा रहा है, ये अलग अलग फसल में और अलग अलग इंटेंसिटी जो कीड़ों की उसके हिसाब से बदल सकते हैं। एक बार आप 80 लीटर पानी में करके देखिए, अगर आपको इससे रिलीफ तो मिलेगा, पर अगर आपको पूरा रिलीफ आपको नहीं मिला तो 80 लीटर आप करें, 70 लीटर में करके देखिए और फिर आप 60 लीटर में करके देखिए। ऐसा करेंगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि जो मेरे कीट हैं उनसे मुझे काफी हद तक फायदा हो गया है। उसके बाद में एक और कीटनाशक है जो कि यूनिवर्सल है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पत्ते खाने वाले कीड़े हैं, जो आपके फ्रूट हैं उनमें जो या सब्जियों के अंदर छेद करने वाले कीड़े हैं। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि परेशानी क्या है और वायरस किस तरीके का है, कीड़ा किस तरीके का है, तो एक कीटनाशक है जो कि सब तरीके का इफेक्ट डालेगा, सब तरीके का काम करेगा। उसमें आपको गौमूत्र लेना है और जो आपके जिस आप इलाके में है वहाँ के 10 से 15 तरह की पत्तियां ऐसी होती हैं कि जिनको जनरली हम लोग कहते हैं कि उनको कीटनाशक के रूप में क्या काम लिया जा सकता है। मैं यहाँ पे जिस जोन में रहता हूँ, यहाँ पे नीम है, आक है, धतूरा है, गाजर घास है, उसके बाद में देशी बबूल है, सीताफल है, कनेर है, करंज है, आम है। इस तरीके की जो वनस्पतियां हैं उनके पत्तों को आप यूज कर सकते हैं इस कीटनाशक को बनाने के लिए। तो ये कीटनाशक बनाने के लिए जो मैंने पत्तियां बताई हैं उनमें से 20 लीटर गौमूत्र के साथ में
आप जितनी ये पत्तियां हैं ये 2-2 किलो आप रखें, उसके अंदर आप सारी की सारी पत्तियां उनमें डाल दें। और उसके बाद में फिर आप इसमें 500 ग्राम लहसुन और 250 ग्राम तंबाकू की पत्तियां डालें, और उसके बाद में फिर उसमें 250 ग्राम लाल मिर्च भी डालें। उस ये जितना भी सारा आपका मिश्रण तैयार है, इसको घोल के आप 40 दिन तक इसको पड़ा रहने दें। 40 दिन में ये खूब अच्छे से तैयार हो जाती है। और इसके साथ साथ जो घरों में गांव में जो चूल्हे पे यूज करते हैं तो राख मिल जाती है। राख अगर चूल्हे में नहीं मिलती तो आप किसी आसपास के मंदिर से ले सकते हैं जहाँ गोबर के उपले काम में लिए जाते हैं। तो उस राख को भी आप बहुत अच्छी तरीके से जो आपके कीटनाशक हैं उनके उनमें यूज किया जाता है। ये राख जो है इसको 40 दिन ये पड़ी है जो आपका कीटनाशक तैयार हो रहा है, उसी के साथ में आप इसको राख को भी पड़ा रहने दें। और राख को भी फिर बाद में इसके साथ में मिला के, और इसका जो लिक्विड बनता है उसको यूज कर सकते हैं कीटनाशक के रूप में भी। और जो उस छानने के बाद में जो राख का जो सॉलिड बचता है, उस सॉलिड को आप जो दीमक है उसके नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए ये जो आपका रसायन तैयार हुआ, कीटनाशक जो तैयार हुआ, उसको 80 लीटर पानी में घोलकर और छिड़ककर फसलों पे इस्तेमाल करना चाहिए। ये हर तरीके के जितने भी तरीके के आपके कीट हैं उन कीटों को एक तरीके से आपकी फसल से दूर करने का, आपकी फसल का बचाव करेगा। और उसके बाद ये कहा जाता है जो कि सारे जितने भी तरह के कीटनाशक हैं, अगर आप जो केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज नहीं कर रहे हैं और आप पूरी जीवाणु कहते हैं खेती कर रहे हैं, तो आपके कीटनाशक उनकी बहुत ही कम आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी फसल जो है वो अपने आप में बहुत मजबूत हो जाएगी। तो ये एक सेगमेंट था कि जिसमें आप जो पहली चीज थी, आप इनपुट क्या डालें, आपके जो कीटनाशक हैं उनको आप इस तरीके से बना के यूज कर सकते हैं। एक और चीज उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है टॉनिक। फसलें जब जिस वक्त आपकी फ्रूटिंग की स्टेज में आती हैं, जिस वक्त बालियां आ रही होती हैं फसलों में, उस समय टॉनिक आप बना सकते हैं। टॉनिक बनाने के लिए 1 एकड़ के लिए मैं ये जो जितनी चीजें आपको बता रहा हूँ वो सारी 1 एकड़ की फसल के हिसाब से है। तो टॉनिक बनाने के लिए आप सबसे पहले 100 ग्राम तिल लीजिए और उनको पानी में भिगो दीजिए। पानी जो है वो बहुत, तिल जितने भीग जाए उतना ही होना चाहिए। उसके बाद में अगले दिन 24 घंटे के बाद में आपको 100 ग्राम गेहूं लेना है, 100 ग्राम बाजरा लेना है, 100 ग्राम मूंग लेना है, 100 ग्राम मोठ, उड़द, चना, 6 ये चीजें और लेनी है, और उन सबको एक साथ भिगो दिए। पहले दिन आपने तिल भिगोए, दूसरे दिन आपने ये 6 चीजें भिगोई, तीसरे दिन आपको इन सब चीजों को एक साथ निकाल के और किसी पोटली में बांध के रख देना है। जो पानी भिगोया उसको अपने पास में रखना है। जब आपने वो जो अंकुरित जो चीजें आपने भिगो के जो पोटली में बांध रखी है, 2 दिन में उनमें 1-1 सेंटीमीटर के अंकुर आ जाएंगे। और अंकुरित जब वो हो जाती हैं तब उनको पीस के और फिर ये जो आपका पानी है उसमें मिक्स करके, और 20 लीटर पानी 20 लीटर उसमें आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में इस पूरे के पूरे घोल को 200 लीटर पानी में मिक्स करके और फिर आप अपनी फसल के ऊपर उसका छिड़काव करें। ये बहुत बढ़िया टॉनिक का काम करता है। आपकी जो फसल है उसमें लाग बड़ी अच्छी आएगी और आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से आपका बढ़ता रहेगा। अब मैं आता हूं जो अपना हमारा जो तीसरा सेगमेंट था एग्रो फॉरेस्ट्री का, कि किसान अपने आप अभी जो आपकी ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो इसमें देखिए बहुत ही खुले खेत हैं जिनमें पेड़ों की मात्रा बहुत ही कम है, आपको पेड़ दिख ही नहीं रहे। तो अगर किसान अपने खेत में सिस्टमेटिक ढंग से पेड़ लगाए, मैं ये बात करूंगा कि ऐसे पेड़ लगाए जो आपकी खेती में मदद करें और आपको वो एक्स्ट्रा इनकम भी दे सके। तो जो खेतों की मेड़ है, उस मेड़ के ऊपर आप बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके पेड़ लगाते हैं। राजस्थान में हम जहाँ बैठे हैं तो खेतों के बीच में अगर आप खेजड़ी के पेड़ लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फसल को मदद करेंगे। बिना किसी इनपुट के खेजड़ी के नीचे बहुत अच्छी खेती होती है। खेजड़ी जो है वो बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन फिक्सर काम करती है, जमीन के कार्बन को भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाती है। उसके बाद में जो आपकी मेड़ है, उस मेड़ पे आप बहुत सारी वेराइटीज लगा सकते हैं। जैसे आप शीशम लगा सकते हैं,
आप आलू लगा सकते हैं। ये वैरायटीज जो है ये लंबे समय तक आप इन पेड़ों को रखेंगे तो कुछ पेड़ जो है वो बिना हार्वेस्टिंग के भी आपको खूब अच्छा फायदा देंगे, और कुछ पेड़ जो है उनको 15 से 20 साल के बाद में जाके आप हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी जरूरतों के हिसाब से भी कर सकते हैं और मार्केट की जरूरतों के हिसाब से आप उनको कर सकते हैं। लेकिन ये पेड़ जब लगे होंगे तो जिस समय पे आपके जो खेत खाली पड़े हैं या आप अगर फसल कर भी रहे हैं, तो हम जहाँ पे हैं वहां पे सर्दी एक्सट्रीम है, सर्दी की वजह से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, गर्मी एक्सट्रीम है, गर्मी की वजह से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये लगे हुए पेड़ हमारे खेत में एक माइक्रो क्लाइमेट का निर्माण करेंगे, जिसमें ये गर्मी है उसको भी रेगुलेट करेंगे, और जो पाला यहाँ पे गिरता है, जो माइनस में टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है, उसको भी अपने आप में ये बहुत अच्छे से रेगुलेट करेंगे। तो आपकी जो सर्दी और गर्मी दोनों की फसलें हैं उनमें ये पेड़ आपको इनडायरेक्टली आपकी फसल को बचाने का काम करेंगे। ये तो हो गया पहला फायदा। दूसरा फायदा, ये जो पेड़ हैं ये माइक्रोब्स का घर होते हैं। इन पेड़ के नीचे माइक्रोब जिस वक्त बहुत गर्मी होती है, एक्सट्रीम सर्दी होती है, उस समय पे अपना काम बखूबी कर रहे होते हैं। और जमीनों के अंदर जो बहुत ही सूक्ष्म जो जीव हैं उनका बड़ा अच्छा नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है, जो एक बार जब ये नेटवर्क बन जाता है, बन जाता है, तो आपके खेत को, आपकी फसलों को सालों साल ये फायदा करता रहता है। तो पेड़ खेतों में लगे हुए अगर हों, ये लोग, ये किसान ये मानते हैं, ये मानने लग गए हैं कि अगर पेड़ लगे होंगे तो खेती नहीं होगी। मैं उन किसानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज से 15 साल पहले के सिचुएशन को आप याद करिए कि खेतों में कितने ज्यादा पेड़ हुआ करते थे, नेचुरली हुआ करते थे। उस वक्त तक बहुत ज्यादा यंत्रों से खेती नहीं होती थी, तो पेड़ हमेशा बचते भी थे, लोग किसान बचाते भी थे। आजकल जब ये यंत्रीकरण खेती हो गई है तो उसमें पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, जड़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, माइक्रोब्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो पेड़ है उनकी मात्रा बहुत कम हो गई है। नहीं तो मुझे मेरा ख्याल आज के साल पहले जितने पेड़ थे अब उसके 15% या 10% पेड़ ही बचे हैं, और उस वक्त खेती ज्यादा अच्छी होती थी, कम इनपुट के साथ अच्छी खेती हो रही होती थी। किसानों को अब पेड़ लगे होंगे तो आपको काम करने में भी आसानी रहेगी, आपको पानी जो देना है उस पानी में भी आपकी बचत होगी। जो बरसात के सीजन के टाइम जो पानी बहता है बहना बंद हो जाएगा, वो जमीन जो है उसको, जमीन को पानी सोखने की और जमीन को पानी को रोक के रखने की जो क्षमता है वो भी खूब अच्छी बढ़ जाएगी। तो जो एग्रोफॉरेस्ट्री है, जिसको कि हम लोग अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, हम लोग इसमें, इसके लिए हम बहुत सारी जो आज की जो टेक्निक्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से राजस्थान की एक टेक्निक जो है वो ड्राई लैंड फॉरेस्ट्री टेक्निक है, जिसमें कि आप पेड़ लगाइए और पेड़ लगाते समय पे आपको 1 लीटर पानी देना है, उसके बाद में आप पूरे पेड़ को जीवन पानी की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से पेड़ लगाए जा सकते हैं। जो खेत खाली पड़े, अगर किसी किसान का बड़ा खेत है, 10 बीघा 15 बीघा का छोटा खेत भी अगर है, तो कुछ हिस्से में एग्रो फॉरेस्ट्री शुरुआत कर सकता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने पूरे खेत को इसमें कन्वर्ट कर सकता है, ताकि उसका जो फ्लो है, उसका जो काम करने का और इनकम का फ्लो वो भी डिस्टर्ब नहीं हो, और वो अपने पूरे के पूरे खेत को एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल के रूप में डेवलप करके और अपनी आय जो है उसको बढ़ा सकता है। हमारे एक तरीके से काम कर रहे हैं सुंदराम जी हैं, जिनको इस साल पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई है। इन्होंने अपने जीवन में 50,000 से ज्यादा ड्राईलैंड फॉरेस्ट्री के रूप में पेड़ डेवलप किए हुए हैं। अब हम आते हैं देसी शीड की जरूरत क्या होती है और देसी शीड को इस्तेमाल करने से किसानों को क्या फायदा है। सबसे पहला तो देसी शीड, देसी बीज जो हम किसान अगर काम में लें तो आपकी जो फसलें हैं वो मजबूत होगी, प्रोडक्शन है वो हाई न्यूट्रिशन का होगा, कम खर्चे में आप अपने जो है उनको डेवलप कर सकते हैं। आपके पेस्टिसाइड की और केमिकल फर्टिलाइजर की जो इनपुट कॉस्ट है वो एकदम कम हो जाएगी, और कंटिन्यू जब आप इसी को करते चले जाएंगे तो खुद के स्वास्थ्य में और जिनको आप दे रहे हैं उन सबके स्वास्थ्य में भी काफी फायदा होगा। ये सारे जो मेथड हैं, इनसे एक तो ये जो हमारा कम्युनिटी है, जो हम लोग जैसे आसपास लोग हैं, हम उनको बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर एनवायरनमेंट जो है वो हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा,
जब हम केमिकल्स जो हम खेती में यूज करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग खेती केमिकल के साथ करते हैं वो तो सांसों के साथ में भी उन केमिकल को लेते हैं, और जो प्रोड्यूस होता है वो इनडायरेक्टली बाकी सब लोगों को भी पेट में जाता है। अगर हम हमारी खेती को इस तरीके से कन्वर्ट कर लें तो लोगों को अच्छा कर पाएंगे, और हम इस धरती को रहने के लिए बेहतर जगह हम बना पाएंगे। हमारा जमीन, मिट्टी और पानी जो है, उन तीनों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से नरिश कर पाएंगे, उनको अच्छे से बना पाएंगे, और इन सब के साथ साथ किसानों को आर्थिक फायदा जो है वो भी काफी हद तक पहुंच पाएगा। थैंक यू वेरी मच। Yeah. ये जी Yes, sir. Come up. You can share your team also. जी Yeah. जी सो हमारी टीम जो है वो अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग लोकेशन पे है। मेरे मित्र मानवेंद्र हैं जो उत्तराखंड बेस्ड है, वो पहाड़ों में किसानों के साथ में काम कर रहे हैं। दूसरे मेरे मित्र नवीन हैं जो कि एमपी में काम कर रहे हैं, मैं यहाँ जयपुर बेस्ड हूँ। और हमारे मित्र सुंदराम जी हैं, वो हमारे साथ में अलग अलग सभी लोकेशंस पे हमें गाइडेंस वो देते रहते हैं, जिनका कि मैंने आपको बताया सीड डेवलपमेंट का काम है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये करना चाहूंगा, हम लोग जो ये तीनों चारों जो मैंने आपको मेथड बताया, ये हमारी बहुत है। हम किसानों के साथ में अलग अलग जगह पे वर्कशॉप करते हैं, जहाँ कहीं भी चाहें हम उस जगह पे आके और उनको ट्रेनिंग भी इस चीज की देते हैं। जयपुर में हम लोग रेगुलर वर्कशॉप इसकी कंडक्ट करते रहते हैं, और अब हम इसकी फिजिकल वर्कशॉप जो सीड डेवलपमेंट की है वो 2021 में हम शुरू करने वाले हैं। फरवरी से हम लोग इसकी सीड डेवलपमेंट के साथ किस तरीके से अपनी फसलों के बीज खुद उन्नत तैयार करता है, उसकी एक वर्कशॉप हम फरवरी से हम लोग लगातार करना चाहेंगे। बहुत जल्द दिसंबर के महीने में ही, 15 दिसंबर के आसपास हम ऐसी वर्कशॉप की घोषणा कर देंगे, और नियाम जो है उसके माध्यम से हम लोग सभी किसानों तक ये सूचना पहुंचाएंगे। जी Sure. Yeah. Thank you very much, sir. Actually, very effective and innovative methods you have come up, balancing the ecosystem. You talked about the methods and means how to conserve the ecosystem with the help of natural inputs, then desi seed varieties, and further put forth on agri-forest also. Your eminent mentor, I think Padma Shri Sundar Ramji, who has have recognized for the Padma Shri Award for the dryland forestry, and I think he has come up with very innovative technology for the conservation of traditional technology with modern technology one. Then you talked about the Jivan Ghol. I think it is up to the mark, one of the innovative method for different fruits and vegetables. Further biopesticides, which we come up with neem, tobacco, garlic, and it is very worthwhile for the sucking pest. So, sir, one question from our side is that whether all the innovative techniques are recognized, whether you have come up with some research publications in that side, or still the work is in process? Till now, we haven't developed any kind of written material on this, but we are under process of this, and we will soon be able to publish some material on this. Sure, sir. Because as in a booklet form. Okay. Because the more authentic it will be, so we are very well known that we are running two programs, Agripreneur Orientation Program and Startup Agribusiness Incubation Program. You can apply for this particular program for the grant in aid funding, since you are doing very well work dealing with the grassroots level of farmers. Sir, one more question. One more question is whether you have any database of how many farmers are benefited with these innovative technologies. Till now, like if you are talking about Dharti Amrit, then we could approach 150 farmers near Jaipur, in three villages. And why we are working only with the small number till now is that whoever is fully convinced with our methodologies, we are working with them only. Initially, we are giving them training and just make them understand what we want to convey the message to them. If they are interested, if they are fully convinced, then only we start working with them. And then,
from the very beginning we are replacing the chemicals with our inputs. So that's why the number is very less, because nowadays farmers are very much in a kind of state where they can say that without chemicals we will not be able to do anything. So that is the hurdle with us. Sure, sure. Yes, sir. Because Yeah. in order to maintain the platform for traditional technologies and consuming Yes. them in this upcoming modern technology, it is one of the challenge. Yes. And I think you are doing Yes, yes, that good work in order to maintain a balance between traditional as well as modern technologies. modern Yeah, techniques, yeah. yes. Now I request the participants, if any participants who have any question, query regarding this innovative technologies, they can come up. They can raise their question. Participants, if any questions from your side, please raise. I request the participants. Yeah. Sir, one question from my side again. You have, Miss, first of all, how you have come up with this scenario that you have to come up with organic based products, then how you see this challenging situation in this present scenario, and how you can convince the farmers to move in this particular direction? Any strategy or any mode that have helped you in order to move in this particular direction? जी। सो अगर मैं मेरी बात करूं तो जो मैंने इसकी शुरुआत करी, जो मेरा सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेज जो था जब मैं नेवी की सर्विस में था, उस समय पे 2012 में मेरे जो पिताजी हैं उनको पैरालिसिस का अटैक आया था और उनको ये समस्या हो गई थी। और उसके बाद में मैंने कुछ सालों तक इसके जो कारण है उसके बारे में मैंने जानने की कोशिश करी कि क्या समस्या है। और मुझे सबसे बड़ा कारण जो समझ में आया वो ये था कि आज के समय की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जो खान-पान है, खूब अच्छी लाइफस्टाइल जीने के बाद में भी आदमी उससे बच नहीं सकता। तो सबसे पहली कोशिश तो मेरी ये थी कि जो ये सेक्टर है उसको टारगेट किया जाए और उसमें आगे बढ़ा जाए। तो शुरुआत मैंने इससे करी। और जब मैं किसानों के बीच में गया तो मुझे और बहुत से चैलेंजेस मिले कि किसानों के जिनको समझ में भी आता है कि हमें केमिकल यूज नहीं करने हैं, उसके बावजूद क्या कारण है कि वो लगातार उन केमिकल को ही यूज करते जा रहे हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं और परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसी दौरान मैंने ये समझा कि एक तो सीड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना की बहुत आवश्यकता है। किसान के खुद के सीड जो है वो खत्म हो चुके हैं, पूरा का पूरा मार्केट के ऊपर डेवलप है, जो कि जो आपके हाइब्रिड सीड हैं या जेनेटिक मॉडिफाइड सीड आजकल आ गए, उनके ऊपर किसान डिपेंडेंट हो गया। तो वो जो एक जाल है, उस जाल की वजह से वो चाहते हुए भी केमिकल से बच नहीं सकता और उस दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। तो इस वजह से एक होलिस्टिक प्रोग्राम बनाने की मुझे जरूरत बड़ी महसूस हुई कि जिसमें इनपुट, ना सिर्फ इनपुट, केवल केमिकल्स को रिप्लेस करने से काम नहीं होगा, केमिकल्स के साथ में आपको सीड के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और इसके लिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से जो सुंदराम जी हैं उनका गाइडेंस मुझे मिला। वो जो है वो 70 से ज्यादा वैरायटी के सीड वो डेवलप कर चुके हैं, किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को केमिकल से निजात मिल रही है। उसके बाद भी मुझे लगा कि जो इनपुट में भी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उसका भी एक बड़ा कारण ये है कि जब तक खेतों में माइक्रो क्लाइमेट आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आज पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो जमीन तो सबसे ज्यादा किसानों के पास में है। तो अगर इन तीनों चीजों को, सीड, इनपुट प्लस फॉरेस्ट्री, ये तीनों चीजें जब जुड़ जाएंगी, तब जो हम लोग बात करते हैं कि एक निरोग्य की, आरोग्य की जो हम बात करते हैं, उसकी तरफ हम अग्रसर हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने इन तीनों चीजों को एक साथ इंक्लूड करके, एक साथ इनको एक पैकेज बना के और फिर उनको किसानों के बीच में ले जाने की कोशिश करी है। थोड़ा टाइम टेकिंग और बड़ा लंबा इसका प्रोसेस है, सबको समझाना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी नया इनोवेशन या कोई भी नई चीज जो आप शुरू करते हैं, उसमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, थोड़ा समय लगता है। लेकिन जो जो चीजें हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं, जो जो चीजें हम लोग प्रूव करते जा रहे हैं, उनके मॉडल अब हम धीरे धीरे किसानों को दिखा पा रहे हैं। बिकॉज जो काम हमने 2 साल में, 3 साल में किया, वो अब विजिबल हुआ है, वो अब दिखने लगा है, जो कि किसानों को भी समझ में आता है। तो
इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मेरी थीम थी कि मैं एग्रीकल्चर के थ्रू एक आरोग्य और एक निरोगी जो समाज है वो हम लोग दे पाए, उसकी दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। जी। Yes, sir. Actually, moving with the healthy agriculture with healthy people, I think this motto will be very keen to your this upcoming agriculture innovative organic model. So, I think if any participants, any question, you can come up or we can wind up the session. Participants? Okay, sir. So on the behalf of CCS Niyam Jaipur, Principal Scientific Advisor, Government of India, then the keen platform of Kisan Mitra, I am very much thankful to you, your team, and your eminent work towards the agriculture. Not only in India, I think upcoming Asian and African countries, and as well as the developed countries, need in this way to move and measure, mention, as well as come up with sustainable organic models like you. So with this concluding remark, I thank you, all the participants, all the dignitaries who have joined all around the globe for this innovative webinar. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Mahesh, and thank you so much to CCS Niyam. Thank you. Sure. Yeah. Thank you. Thank you very much, sir. Have a good day. Yes.